यस। हेलो। हाँ, यस सर। हाँ, आपको अपना वीडियो बंद करना होगा। ठीक है सर। माइक भी बंद कर दूं सर? माइक भी बंद कर दो, जब कुछ पूछना हो अभी ऑन करिएगा वरना डिस्टर्बेंसेस हो। ठीक है। ओके सर, जी सर। थैंक यू। ओके, आई विल वेट फॉर अ मिनट, लेट द अदर पीपल जॉइन। ओके, देन वी विल स्टार्ट। ओके सर। Okay, let's start this session. So I welcome you all to this tutorial session on smart grid basics to advanced technologies. And this session will be taken up by Mohammad Owais, me, the Prime Minister Research Fellow from the Department of Electrical Engineering, Aligarh Muslim University. So I think I am audible to you, all of you. मेरी आवाज आ रही होगी। If ठीक है तो then we will move ahead. तो अब करना क्या है इस ट्यूटोरियल सेशन में? We will study about different types of storage systems. Okay, उनके क्या इम्पोर्टेंस है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टोरेज सिस्टम, और किस किस तरह के स्टोरेज सिस्टम्स होते हैं, लाइक फ्लाई व्हील, और वी कैन से पम्प्ड और सुपर कैपेसिटर भी, और उनके कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, लाइक साइकिल, बैटरी साइकिल्स होता है, लाइफ साइकिल होता है। ये बहुत सारे टर्म्स होते हैं कि जो हम जो है क्या करेंगे, वी विल डिस्कस अहेड। एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ बैटरीज, कि मतलब किस किस टाइप्स की बैटरीज जो हैं अवेलेबल हैं। और फिर हम डिस्कस करेंगे बहुत ही बेसिक टाइप ऑफ बैटरी मॉडलिंग, कि मतलब हम जो है जो भी बैटरी होती है उसको किस इक्विवेलेंट सर्किट से मॉडल कर सकते हैं। देन वी विल मूव ऑन टू अल्ट्रा कैपेसिटर मॉडल,
Then after that, we will move on to the cell selection, and then we will discuss about the factors affecting the battery कि जो बैटरी क्या हेल्थ होती है और स्टेट ऑफ चार्ज है उसको वो किस तरीके से जो है इफेक्ट हो रही है वी विल डिस्कस दैट आल्सो एंड we will see about some IEEE practices standards और guidelines on the battery side. ओके तो ये सब चीज़ें हम जो है इस आज के ट्यूटोरियल सेशन में देखेंगे और एंड देन वी विल आल्सो solve some of the numericals on them. Okay, so let me check it. Yes. Now, why storage systems are important? This is the one of the most important question you will see. The reason behind this is because nowadays there is a greater, you know, there is greater force on or adopting renewable energy sources. तो आजकल जो है तुम देखोगे वेरियस एग्रीमेंट्स आर बीइंग साइन कि हमको जो है अपना इमिशंस कम करना है एंड इंडिया इज आल्सो वन ऑफ द कंट्रीज व्हिच हैव साइन दोज एग्रीमेंट और हम एक और एग्रीमेंट ये है कि हमको वी शुड देयर इज आल्सो a target of India that around 300 around 300 megawatt of uh, renewable energy sources we should be making. Just a second. ओके सो नाउ और इस वजह से क्या होता है कि जब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को हम इंटीग्रेट करते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का सबसे बड़ी डिमेरिट क्या है दे आर अवेलेबल फॉर अ स्मॉलर टाइम लाइक सोलर जो है ओनली इट इज अवेलेबल यस यस थॉमस you can write anything in the chat box if you want me to if you have any question Thomas no it is not a Hindi only it is a mix of it because in the last lecture I was you know uh, in this you want Hindi only or English because English okay the thing is that because in the last lecture I was teaching in English the people student are started saying it's a Hindi में पढ़ा दीजिए so it will be mix of both I think it will be okay for you is it okay now moving on toward the next okay now what happens here is this due to the availability of renewable energy in a for a smaller period of time the that's why we have to store the renewable energy so that it can be used at that time when the renewable energy is not producing the electricity like for example in a day for example like if we are using solar so what happens here in a day it will produce the energy and after the sunset the energy will be zero. So if we want to use the solar energy in this period of time, then we have to store this energy in the battery and then reuse it after that. So this is how
That's why the storage systems are, they are very much in fashion right now, because there are various things has been, they are very important, or we can say the backbone of our whole objective of decarbonization. So now coming to why the storage systems are important. So storage systems are important because uh, why? In a grid-connected mode, batteries can store excess of the renewable energy when demand is less and supply the required deficit power when renewable generation is less. ठीक है ना? वही बात कि मैं ये कह रहा हूँ जब renewable power की generation zero हो जाएगी या फिर less हो जाएगी, at those period of time we can use the energy storage in our battery and system. Okay. अब क्या होता है? As I have said, during the islanding mode, what happened here is that the microgrid is disconnected from the main system. So what happens here is that then the energy in that microgrid will be powered from the renewable based energy sources. In an islanded mode, I have already taught in the last lecture that it happens when there is a disconnection from the main grid. अब क्या होता है जब डिस्कनेक्टेड हो जाता है मेन ग्रिड से, फिर उसकी वजह से जो इसमें जो आपका इसमें फिर क्या प्रॉब्लम हो जाती है, मैंने पिछली बार बताया था कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो जाता है और फ्रीक्वेंसी का और डेविएशन हो जाता है। तो बैटरीज का जो स्टोरेज होता है बीएसए बैटरी की मदद से वी कैन हेल्प रेगुलेट द ग्रिड वोल्टेज बाय इट्स चार्जिंग और डिस्चार्जिंग एक्शन दोनों से। ठीक है। और अब another important thing about which is very much important is to flatten the load curve। ये बहुत important कि एक्चुअली क्या होता है हमारा लोड कर्व होता है इट इज लाइक दिस। ओके। एट सम टाइम देयर इज अ पीक लोड, फिर उसके बाद ऑफ पीक टाइम आता है, फिर another peak time, then again off peak time। अब क्या होता है वी वांट टू फ्लैटन आवर कर्व बिकॉज वी डोंट वांट दिस टाइप ऑफ वेरिएशन इन आवर लोड डिमांड। इसके लिए क्या प्रॉब्लम, इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई एक एक्स अमाउंट ऑफ लोड डिमांड है और यहाँ पे एक वाई है विच इज ऑब्वियसली एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अगर हम ये सब चीजें कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज से ले रहे हैं पूरी एनर्जी, तो हमको जो है अपना जो जनरेशन होगा वो एक्स के अकॉर्डिंग प्लान करना होगा, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा इन अ डे देन इट हैज टू डिलीवर द एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। बट आफ्टर delivering for let's say for टी टाइम, आफ्टर टी टाइम क्या होगा कि वो जो जनरेशन हमने डिजाइन करा इट विल नॉट बी यूज अगेन, ओनली इट विल यूज व्हेन द एट दिस टाइम। तो बाकी टाइम पे इट विल उसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो परसेंटेज यूटिलाइजेशन विल बी लेस। तो इस वजह से हमारी इकोनॉमिकली वो सही नहीं रहता। तो दैट्स व्हाई वी यूज बैटरी स्टोरेज सिस्टम। अब बैटरी स्टोरेज सिस्टम से क्या होता है कि लेट्स से देयर इज एनी पीक डिमांड, तो हम क्या करेंगे इस पीक डिमांड की जो पावर है वी विल सप्लाई इट फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है। लेकिन बट प्रॉब्लम इज दैट लेट्स से ये पीक डिमांड हमारी सनसेट के बाद आई, तो फिर हम रिन्यूएबल एनर्जी तो उस टाइम वर्क करेगी नहीं, तो फ्रॉम हियर द बैटरी स्टोरेज सिस्टम कम्स इनटू एक्शन बाय सप्लाइंग द पावर। तो इससे क्या होता है हमारा जो पीक कर्व जो लोड कर्व है इट इज गेट फ्लैटन आउट। ठीक है। दिस इज द थिंग। ओके। अब इसमें क्या है एक केस स्टडी बताई गई है कि 100 मेगावाट बैटरी पावर इंस्टॉल बैटरी इंस्टॉल्ड बाय द टेस्ला इन द साउथ साउथ ऑस्ट्रेलिया। ओके। और ये बिकॉज साउथ ऑस्ट्रेलिया क्या था कि इट इज crippled बाय द इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम रिसेंट टाइम, और वहाँ पे हॉट वेदर होने की वजह से पीक लोड में ऑफ कोर्स जब हॉट वेदर होगा एसीज ऑन होंगे, कंडीशनिंग यूनिट्स ऑन होंगे, तो कूलिंग सिस्टम्स ऑन होंगे, तो उसकी वजह से पीक डिमांड बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से क्या करा उन्होंने दे हैव इंस्टॉल 100 मेगावाट ऑफ अ बैटरी इंस्टॉल करा गया, जिसकी वजह से हाँ दिस इज हिस्ट्री इन मेकिंग साउथ इंडिया ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर जे वेदर। अब इसमें आता है कि टाइप्स ऑफ नॉन इलेक्ट्रिक स्टोरेज सिस्टम, किस किस टाइप के स्टोरेज सिस्टम होते हैं ये हैं। एक है पम्प्ड वाटर स्टोरेज सिस्टम है,
एक है कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज सिस्टम्स हैं, ये मैंने थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब पिछली बार कर दिया था, फ्लाई व्हील बेस्ड है। फिर है हमारा electrochemical based हैं, accumulators with internal storage, accumulator with external storage, and there are hydrogen systems also. And thermal storage है, which is a hot water based. Now, there are types of electric storage system, like this is an Exide battery, which is an electric storage system. Uh, superconducting energy storage systems होता है। फिर हैं सुपर कैपेसिटर्स हैं। These are also that they also store electrical energy, like मतलब इसकी एनर्जी डेंसिटी जो है, सुपर कैपेसिटर क्यों कहा गया है, क्योंकि नॉर्मल कैपेसिटर से जो इनकी एनर्जी डेंसिटी होती है, एनर्जी डेंसिटी, इट इज मच 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 ग्रेटर देन नॉर्मल नॉर्मल कैपेसिटर्स जो अराउंड 10,000 टाइम्स ज़्यादा होती है। ठीक है। ओके। और ये क्या होता है कि दे आर वेरी, दे कैन बी यूज फॉर अ सुटेबल, मतलब जनरली दे आर सुटेबल फॉर रैपिड और बर्स्ट मोड ऑफ पावर। कहीं पर हमें बहुत मतलब बहुत ज्यादा पावर चाहिए फॉर अ स्मॉलर ड्यूरेशन, उस टाइम के लिए सुपर कैपेसिटर टाइप एनर्जी स्टोरेज यूज कर सकते हैं। एक होते हैं सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक, जिसको कहते हैं SMES करके। ठीक है। अब ये कैसे स्टोर करते हैं एनर्जी, बाय फ्लोइंग द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय फ्लोइंग द इलेक्ट्रिसिटी इन अ सुपर कंडक्टिंग कॉइल। अब क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट्स कम होता है, दैट्स व्हाई इट इज अ हायर एफिशिएंसी 95%। and these are generally, they are also they also have a high burst of energy, less than the supercapacitors, but they have a high burst of energy. Another thing is that कि इनका भी जो आउटपुट होता है, आउटपुट इज आउटपुट बहुत हाई होता है फॉर अ स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। अब आते हैं हमारे ये बैटरी स्टोरेज। दीज आर ये तो पता ही होगा, दीज आर द कन्वेंशनल battery storage types. Okay. Where the energy is stored in an electrochemical form, and overall efficiency we also know that it is not a very much efficient, 70 to 90% around efficiency varies. Okay. And they operate, uh, इसमें they have different types of battery systems like NAS battery system, or we have also lithium ion, yes, okay. Lithium ion battery system is also here, the convention. Okay. अब इसमें जो है हमको हमको पता है कि इसमें एक और होती है लेड एसिड बैटरी होता है सिस्टम, जो कि हम जनरली इन्वर्टर्स जो हमारे हाउस होल्ड अप्लायंसेस होता है उसमें यूज होता है। ठीक। अब है ये, दिस इज अ यू नो वी कैन से एन एप्लीकेशन लेवल्स, बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स के कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस हैं एक्चुअली। जस्ट शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है। और फिर अब देखो जनरेशन्स में कहाँ यूज होते हैं, एप्लीकेशन क्या है ग्रिड में, फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन का है, ब्लैक स्टार्ट है, स्पिनिंग रिजर्व है, लोड फॉलोइंग है। ये एप्लीकेशंस है जनरेशन में। रिन्यूएबल एनर्जी का इंटीग्रेशन है, एनर्जी आर्बिट्राज है, सीजनल स्टोरेज है, और वोल्टेज सपोर्ट है। तो इसमें जो है शॉर्ट टर्म के लिए FEES टाइप के यूज होते हैं, और SMEES है, सुपर कैपेसिटर है। ठीक है। दीज टाइप ऑफ बैटरी यूसेज विल बी यूज। और अगर हम ट्रांसमिशन में जाएं तो कंजेशन रिलीफ, सॉरी, वोल्टेज सपोर्ट और कंजेशन रिलीफ है इसके अंदर। इसमें वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरी स्टोरेजेस हैं। एक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कंजेशन रिलीफ है, पावर क्वालिटी, एंड यूजर के हमारे कस्टमर पे भी, कस्टमर के एंड पे भी रहता है कि पावर रिलायबिलिटी का यूसेज के लिए, तो ये अलग अलग टाइप के लिथियम आइन है। और आपका ये जो SMEES है, TEES है, इस टाइप की बैटरी यूजेस रहता है। TES क्या है, दिस इज थर्मल, जो मैंने अभी बताया था, थर्मल बेस्ड है। ओके। और इसमें जो है PEH है, पम्प्ड, विच इज है ना, मैकेनिकल बेस्ड है, हाइड्रो स्टोरेज एनर्जी स्टोरेज है।
और इसमें एक है, तुमने देखा होगा सी ए, जो कि क्या होता है, कंप्रेस्ड एयर बेस्ड है, एनर्जी स्टोरेज है इसमें। और हमारा इसमें लिथियम आयन हो गया इसके अंदर। ओके, दीज आर ऑल एस ई एस है कि ये क्या, फ्लाई व्हील बेस्ड है, फ्लाई व्हील बेस्ड हो गया। ओके, और इसमें वी एल आर ए है, ये है कि वेल्व रेगुलेटेड। ये वाले कौन से सिस्टम है, दीज आर कन्वेंशनल बेस्ड, वेल्व रेगुलेटेड, यू नो लेड ऐसे, जो कि हमारे में यूज होती है। तो दीज आर द अ जनरल डिस्क्रिप्शन वेयर लेवल्स इन द नेटवर्क, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी बैटरी जनरली यूज होती है। अब इसमें क्या है, ईएसएस क्या होता है, जैसे मैंने बताया, these are classified into मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल। अब कॉमन मैकेनिकल स्टोरेज मैंने जैसे बताया, पम्प्ड हाइड्रो बेस्ड है, कंप्रेस्ड एयर्स हैं, फ्लाईव्हील, ये क्या है, दीज आर मैकेनिकल बेस्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैकेनिकल बेस्ड होते हैं ये। एंड केमिकल स्टोरेज है, हाइड्रोजन स्टोरेज, इलेक्ट्रोकेमिकल, इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी स्टोर होती है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस की वजह से इसके अंदर स्टोर कर लिया। थर्मल स्टोरेज इसमें ये रहता है। अब जैसे ये है फ्लाई व्हील वेव, एक स्पिनिंग रोटर लगाया जाता है टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट है। इट कैन बी यूज फॉर ना स्मॉलर टाइम, अगर कहीं पे भी पीक लोड ज्यादा बढ़ जाता है ना, और कन्वेंशनल जनरेशन उसको सेटिस्फाई नहीं करा सकता, देन वी कैन यूज एनर्जी फ्रॉम द फ्लाई व्हील वेव। Upper capacitor, just like I told, it is a stored electrical energy in the capacitor. They have a higher density, actually 1,000 times higher than the normal capacitor, and they have a short-term ESS, like useful in absorbing and releasing a large volume of energy in a short period of time. तो इसको क्या कहते हैं, रैपिड और बर्स्ट मोड ऑफ पावर डिलीवरी दे कैन डू। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड द सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक स्टोरेज, SMES। ठीक है, is store energy in the form of magnetic field, suitable for a grid application where a high power output is required. And now coming to the batteries, which I have just told you, okay, there are VRLA, NAS, and lithium-ion batteries are the most economic and mature technology होती है। और लेकिन बस इसमें प्रॉब्लम्स क्या होती है, दे हैव द लिमिटेशंस ऑफ साइकिल लाइफ। इनमें क्या होता है, जनरली मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, जो मोबाइल की बैटरीज होती हैं, जो लैपटॉप की बैटरीज होती हैं, दे आर जनरली अराउंड 1000 लाइफ साइकिल्स पर होती है। अब लाइफ साइकिल क्या होती है कि एक बार जब बैटरी को चार्ज करते हैं, वो फुल कैपेसिटी यूज हो जाती है, तो एक साइकिल कंप्लीट कर देता है। तो इस तरीके से कि जब इसके 1000 लाइफ साइकिल्स पूरी हो जाएंगी, देन इट विल deteriorate, actually it will, these are the ideal case scenario, but they will deteriorate earlier than that, that's the problem, ये पहले से ही जल्दी deteriorate हो जाती है। अब है इसमें पम्प्ड हाइड्रो एनर्जी, इट इज द मोस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ये जनरली बहुत ही ज़्यादा इसका यूसेज रहता है, पम्प्ड हाइड्रो, PHES का। compress energy storage, as the name suggests, it compresses the air and store it under a pressure of 70 bar, and reconvert the compressed air using turbine or generator। अब जब इस कंप्रेस्ड एयर से जो है हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, रिकन्वर्ट करते हैं कंप्रेस्ड एयर को यूजिंग टर्बाइन जनरेटर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एक्चुअली यू कैन सी इट इन्वॉल्व्स द मूविंग पार्ट्स, तो जनरली एफिशिएंसी विल बी ना लेस, एंड इट कैन आल्सो स्टोर एनर्जी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आपको बहुत लंबे पीरियड टाइम के लिए एनर्जी स्टोर करनी है, देन इट कैन बी यूज्ड। Major drawback, yeah, it is very expensive because the technology behind compressing the air and the turbine or generator will add up to the economical aspect में add कर दो। Okay, now this is a just a classification of ESS, energy storage system, ये क्या है, इनका है। देखो, SES फ्लाई व्हील बेस की स्पेसिफिक एनर्जी जनरली 5 to 130 वाट आवर पर किलोग्राम तक रहती है, एंड स्पेसिफिक पावर वेरीज फ्रॉम 400 to 1600। ओके, डिस्चार्ज टाइम जो है ये हमारा 15 सेकेंड टू 15 मिनट तक रहता है, एंड इट्स अराउंड इट हैज एफिशिएंसी ऑफ 85 to 90%, 95%। और लाइफ साइकिल इसकी इट इज वेरी हाई,
10 raised to the power 7. Okay. Supercapacitor specific energy is this much, power is this much, you know, and efficiency, it's, I think, greater than 95%. And life cycle is also very much. Battery. Now come the conventional battery, lead acid, lithium ion, and this. In this, you can see that lithium ion has a specific high power. You can see that it is 230 to 340 watt per specific power. So क्या हो जाए ये कम kilogram for a given weight, lithium ion will give a higher energy in comparison, higher power in comparison to other. It also has a higher specific energy like 150 to 250, and its efficiency almost 85 to 95, much higher than the highest you can say in the conventional battery system. And life cycles is around 4000 depending upon this. Then comes the PHES. It has this much of this. And then comes the compressed air. I have already talked it about. Now comes the second one is the compressed air based, which has the life cycle greater than 1000. देन कम द फ्लो बैटरी. अब फ्लो बैटरी क्या होती है? फ्लो बैटरी में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट को एक एक्सटर्नली स्टोर कराया जाता है टैंक्स में आउटसाइड द बैटरी इलेक्ट्रोड, और इसका इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब बैटरी जो है ऑपरेशन में हो. इससे क्या होता है, इट सेपरेट्स इट्स पावर एंड एनर्जी साइजिंग. अब क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो क्या, इलेक्ट्रोलाइट एक्सटर्नली स्टोर होता है आउटसाइड द बैटरी इलेक्ट्रोड. इससे क्या होता है कि पावर और एनर्जी साइजिंग के लिए काफी लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए इट कैन बी यूज. और फ्लो बैटरी का हायर एफिशिएंसी भी रहता है काफी. ओके. इन द इन ऑल दीज हाइड्रोजन कम इन दीज इट हैज अ हायर एफिशिएंसी. अगर हम इसमें देखें तो इट हैज अ 75. So these are some of the characteristics of the different energy storages. Now coming to the energy storage, we can say, okay, let me add one thing here. अब इसकी कैपिटल कॉस्ट देखते हैं कि सबसे ज्यादा कैपिटल कॉस्ट किसकी आती है. लेट से कैपिटल कॉस्ट है $US पर किलोवाट आवर. हर किलोवाट आवर में किस किसकी सबसे ज्यादा कैपिटल कॉस्ट आ रही है. ओके. सो बेस्ड ऑन दैट एफईएस की कैपिटल कॉस्ट है अराउंड 1500 टू 6000. ये कैपिटल कॉस्ट है 6000. ओके. Or same on the lines supercapacitor, it has a capital cost of, let me write it in a different color. इसकी कैपिटल कॉस्ट है सुपर कैपेसिटर की 300 to 2000. Okay. And then comes the SMEF, it is 1000 to 10,000. Okay. ये क्या है, कैपिटल कॉस्ट. ओके. अगर हम बैटरी की देखें, it we Gold regulated lithium ion बैटरी की, तो इसकी है अराउंड 100 to 300. लिथियम आयन बैटरी की है इट इज 200 to 840. Okay. And then come to NAS, which varies from 263 to 735 US dollar per kilowatt. Or compressed air, and these are there is another one which is thermal, it varies from 3 to 6. So these are, you can get a clear idea किस तरीके से. जैसे सबसे ज्यादा महंगी है हमारी SMES सुपर कंडक्टिंग. ऑफ कोर्स इट इज अ वेरी एफिशिएंट थिंग, सो इट विल बी कॉस्टलियर. अब आता है एक ग्राफ है जो ये बता रहा है कि पावर आउटपुट इज ऑन द वाई एक्सिस एंड एनर्जी स्टोरेज इन द मेगावाट आवर. अब इसमें क्या है, इट शोज द कंपैरिजन ऑफ अ पावर आउटपुट एंड एनर्जी स्टोरेज इन अ डिफरेंट एनर्जी सिस्टम. द ब्लू रेड एंड ग्रीन लाइन क्या शो कर रहा है, द डिस्चार्ज ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी सोर्सेस. अब इसके बेसिस पे हम ये देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म है, ये शो कर रहा है शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए, दिस शोज द मिड टर्म स्टोरेज एंड दिस शोज द लॉन्ग टर्म स्टोरेज. ओके. So based on this, we can categorize the batteries
ऑन शॉर्ट टर्म के बेस पर हम कैटेगराइज कर सकते हैं, मीडियम टर्म बेस्ड एंड लॉन्ग टर्म। ठीक है, इस तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सी बैटरी को किस टर्म ऑफ स्टोरेज, कितने लेंथ ऑफ टाइम के लिए हम यूज कर सकते हैं। अब इसमें आप ये देख सकते हैं, यू कैन क्लियरली सी कि जो शॉर्ट टर्म स्टोरेजेस हैं like PHES and hydrogen, they have a higher installation cost. Okay, and you can see that from the flow graph. अब तुम ये देखो, सुपर कैपेसिटर, ये सब जो इस लाइन पे पड़ रहा है, दे आर ऑल मीडियम स्टोरेज, मीडियम टर्म स्टोरेज। टर्म स्टोरेज का मतलब क्या है कि कितने टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट, ओके, अब क्या है कि ESS यानी कि एनर्जी स्टोरेज के एप्लीकेशंस क्या है, थोड़े मैंने बता दिए थे। आई विल राइट इट डाउन इन अ डिटेल वे। You should write it down in your copy also if you are writing it, taking the notes. Application, वो तो मैंने बता दिया था एक ग्राफ से, टेबल से, कि क्या क्या एप्लीकेशन, मेजरली क्या एप्लीकेशन है आई विल राइट। सबसे पहला एप्लीकेशन है विच वी कैन से है कस्टमर एनर्जी मैनेजमेंट सर्विस। इससे तुमको काफी बेहतर आइडिया हो जाएगा कि ये क्या क्या काम करता है। अब इसमें क्या है, कस्टमर एनर्जी सर्विस मैनेजमेंट, पहला है पावर क्वालिटी इंप्रूव करता है, पावर क्वालिटी इंप्रूव करेगा। दूसरा है रिलायबिलिटी, पावर की रिलायबिलिटी इंप्रूव करेगा। ओके, एंड देन डिमांड शिफ्टिंग। आई विल एक्सप्लेन दिस फर्स्ट, लेट मी राइट इट डाउन। डिमांड शिफ्टिंग एंड पीक रिडक्शन, इसका तो तुमको आइडिया भी होगा कि मतलब क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। ओके, सो पहले है पावर क्वालिटी इंप्रूव करता है, दूसरा पावर रिलायबिलिटी। अब क्या होगा कि लेट्स से देयर इज एनी आउटेजेस, नो, लॉन्गर टर्म आउटेजेस देयर, और कन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रांसमिशन जनरेशन से हमारी पावर नहीं आ रही है, तो क्या होता है किसी भी एक स्मॉलर एरिया माइक्रो ग्रिड में अगर डीजीज लगे हुए हैं, सोलर बेस्ड डीजीज, विंड बेस्ड डीजीज, अब इनकी एनर्जी स्टोर कर रखी होती है हमने, ठीक है, और मान लीजिए अराउंड अराउंड 8 PM रात के वक्त लाइट चलेगी, तो इसका क्या होगा, इससे क्या होगा कि फॉर अ स्मॉलर ड्यूरेशन, फॉर 1 hour 2 hour, बेस्ड ऑन द डिमांड, वी कैन सप्लाई द पावर टू दिस एरिया। तो इससे क्या होगा कि आपका पावर आउटेजेस कम होगा, रिलायबिलिटी इंक्रीज कर देगा। सिमिलरली डिमांड शिफ्टिंग एंड पीक रिडक्शन के बारे में मैंने बता दिया है। डिमांड शिफ्टिंग का यही है कि दिस इज अ पीक डिमांड। अब ये पीक डिमांड से क्या होगा कि ये जो एनर्जी है, this much amount of energy, we can, if we provide it from DGs or by using energy storage, है ना, तो हमारा पीक डिमांड जनरली क्या हो जाएगा, ये थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा, कन्वेंशनल बेस का जो डिमांड होगा कि लोड जो है कितना, अब उसको सिर्फ इतना सप्लाई करना है, ये वाला पार्ट कौन सप्लाई कर दे रहा है, डी, तो इससे डिमांड की शिफ्टिंग भी हो जाती है, पीक रिडक्शन भी हो जाता है। नाउ thing, another application of this is ancillary services। अब एंसिलरी सर्विसेज में क्या होता है, फर्स्ट है वोल्टेज सपोर्ट। अब क्या होता है, जब ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं फ्रॉम जनरेशन टू द कंज्यूमर, ये प्रोवाइड करी जाती है एंसिलरी सर्विसेज टू द ग्रिड। क्या होता है कि हमारा ग्रिड वोल्टेज को एट स्पेसिफाइड लिमिट में मेंटेन करना होता है, विच विल हेल्प इन मैनेजिंग द रिएक्टिव पावर। तो ईएसएस को हम क्या करते हैं, ईएसएस को यूज करते हैं टू मेंटेन द ट्रांसमिटिंग वोल्टेज, और ये भी कैसे ग्रिड वोल्टेज टू अ विद इन अ स्पेसिफाइड लिमिट।
ठीक है। फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन में काम करता है। फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन। फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन में कैसे काम करता है? इट हेल्प इन मेंटेनिंग द फ्रीक्वेंसी इन द allowable limits. ओके, allowable लिमिट्स में फ्रीक्वेंसी को रखते हैं। अनदर इज स्पिनिंग रिजर्व। अब ये क्या होता है? ये स्टैंड बाय जनरेशन है। स्टैंड बाय जनरेशन है। व्हेन देयर इज एनी अनएक्सपेक्टेड पावर इज अनएक्सपेक्टेड आउटेजेस हो जाती है। ओके, सो दिस विल हेल्प द stand by as a standby generation. Okay. Another important application of is this load following. अब क्या होता है कि जनरली क्या होता है, लोड जो है, when the load changes rapidly, what happens here is this ESS, it just provide a fast response time, and it creates a balance between the load and generation, so that the stability of the grid is maintained. तो क्या कहता है? It creates the balance between generation and load. इससे क्या होती है? स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है ग्रिड। अनदर एप्लीकेशन में एक है, वो है हमारी, लेट मी राइट इट डाउन। आई थिंक यू हैव रोड दिस, लेट मी रीड समथिंग। अब इसमें एक और एरिया है, वो है बल्क एनर्जी। बल्क एनर्जी सर्विसेज का ये भी प्रोवाइड करते हैं। क्या होता है कि generally modern day grid, what happen here is that they provide a large amount of, they have a go through a large amount of variation because of unpredictable demand fluctuation, things like that. So what happened here is that ki it also used as a energy arbitrage. Energy arbitrage. What happened here is that it stores the energy when the price is low, and it can sell it during the peak hour when the electricity is high. तो इससे क्या होता है? द ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड राउंड ट्रिप एफिशिएंसी ऑफ अ ईएसएस विल इम्प्रूव। ओके, मान लो कोई एनर्जी स्टोरेज है डिवाइस किसी के पास, एंड इट कैन स्टोर एनर्जी। और जब जब ग्रिड का क्या होता है कि जो प्राइसेस होते हैं, इट वेरी डिपेंडिंग अपॉन द द एनर्जी अवेलेबल। ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल होती है तो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस कम होते हैं। इट इज़ अ थिंग। ओके, तो इसके बेस पे क्या होता है, ईएसएस क्या करता है? एनर्जी स्टोरेज कर लेता है अपने अंदर, और जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो इट कैन सेल इट बैक टू द ग्रिड। ओके, और एक तो मैंने बता ही दिया है कि एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन में हेल्प करता है, क्योंकि अगर स्टोरेजेस नहीं हो, then all these stocks of renewable energy storage हम increase कर रहे हैं, it will fall flat because storages are the main backbone of these renewable energy. Why? I have just told you कि ये जो है क्या करता है, extra excess of energy store करता है, inject power when required, and also flatten the power output. Okay, so these are the you know things. Now another here is that, okay, now what is, so बैटरी एनर्जी सिस्टम क्या करता है? इट इम्प्रूव द रिलायबिलिटी, पावर बैलेंस इज अचीव्ड बाय चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। ये मैंने बताया आपको कि अगर ज़्यादा पावर है तो अपने आप को चार्ज कर लेगा, कम पावर है तो डिस्चार्ज कर देगा ग्रिड। लॉसेस रिमूव इम्प्रूव करता है, रिड्यूस करता है, जिससे ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इट मेक्स द ग्रिड मोर रेजिलिएंट एंड स्टेबल, इससे जो है पीक डिमांड कम हो जाती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड द फी एंसिलरी सर्विसेज लाइक फॉल्ट राइट थ्रू, रिएक्टिव पावर एंड वर्चुअल एनर्जी। अब क्या होता है कि
जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज होता है, इट हैज अ वेरियस फीचर्स विद डिसाइडेड लाइक शुड मैच द प्रॉपर्टीज ऑफ द पावर सिस्टम। जो भी हम बीएसएस डिजाइन करने जा रहे होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज जो है पावर सिस्टम जो भी है उससे मैच करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है, इसका जो है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, इसकी एनर्जी डेंसिटी इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स while designing the BSS. Why? Because if a BSS have a lower energy density, so eventually the efficiency will be low, and the lifetime is also a very much important factor. It should higher as high as it can be. Also, it is available location and environmental factors and minimum number of storage cycles हैं, ये होना चाहिए। Now coming to the important thing, what is key terminology? अब इसमें terminologies होती हैं बहुत सारी, like duty cycle. The sequence इसको कैसे डिफाइन करते हैं? Sequence of a load a battery is expected to supply for the specified period. ठीक है। सेल साइज क्या होता है? सेल साइज क्या बताता है? इट शोज द रेटेड कैपेसिटी ऑफ अ सेल और नंबर ऑफ द पॉजिटिव प्लेट्स इन अ सेल। इससे हम, अगर कोई कह रहा है कि सेल साइज इसका इतना है, तो इसका मतलब क्या है? इट इज टेलिंग अबाउट द रेटेड कैपेसिटी। एक आता है टर्म इक्वलाइजिंग चार्ज। ओके, इक्वलाइजिंग चार्ज, व्हाट इट इज? अब ये क्या है? इक्वलाइजिंग चार्ज क्या है एक्चुअली? जस्ट it is a charge at a higher level than a normal float voltage applied for a limited period of time to correct the inequalities of voltage, specific gravity, or the state of charge that may have developed between the cells during the surfaces. अब ये क्या होता है? एक चार्ज है जो लगाया जाता है हायर देन नॉर्मल वोल्टेज और बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए टू improve to remove the inequalities like voltages, specific gravity, something like that. Okay. Now, the next thing here is this float services. A operation of a DC system in which battery spends the majority of time on float charge without infrequent discharge. ठीक है, पीरियड क्या होता है? एन इंटरवल ऑफ अ टाइम इन द बैटरी ड्यूटी साइकिल during which the current is assumed to be constant or for purpose of cell sizing calculation. Rated capacity, the capacity designed by a manufacturer of a cell for a given discharge rate at a specific electrolyte temperature and specific gravity. ठीक है, टू गिवन एंड ऑफ द डिस्चार्ज, ये सब चीजें हैं। अब स्टेट ऑफ चार्ज वेंटेड बैटरी पहले हमको देख लेते हैं। बैटरी इन विच द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड इवेपोरेशन आर अलाउड टू एस्केप टू द एटमॉस्फेयर एज दे आर जनरेटेड। तो दीज बैटरीज को कैसे कहते हैं? फ्लडेड बैटरीज कहते हैं। अब सबसे बड़ी चीज है इसके अंदर स्टेट ऑफ चार्ज। ये क्या बताता है? इट इज, अब क्या होता है स्टेट ऑफ चार्ज है क्या? स्टेट ऑफ चार्ज क्या होता है? इट शोज द कैपेसिटी ऑफ अ बैटरी। अब मान लो, देखो क्या होता है कि हमें जनरली अगर मान लो कोई एक सिलेंड्रिकल टब है इस तरीके का, अब उसमें हम बहुत ही आसानी से ये बता सकते हैं कि इसमें इतना ml ऑफ वाटर है या लिक्विड जो भी है, क्योंकि वो चीज कंप्यूटेबल है। हम आंखों से देख के या फिर कोई वेरियस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम ये बता सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम बैटरी के साथ क्या होती है? जो एनर्जी स्टोर्ड है, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय नेकेड आई। इसका मतलब क्या है? और स्टेट ऑफ चार्ज हमेशा क्या बताता है? स्टेट ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हम देख के ये नहीं बता सकते हैं कि कोई ऐसा डिवाइस लगा के कि इसमें अब इतना चार्ज बचा, इतना चार्ज बचा है, क्योंकि स्टेट ऑफ चार्ज का डिटर्मिनेशन इज अ वेरी 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 डिफिकल्ट थिंग। तो इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती है। एक होती है कुछ एक होता है कूलम्स मेथड्स, होता है कूलम्स काउंटिंग मेथड होता है। ठीक है, एक कालमान फिल्टर बेस मेथड होता है, ये बहुत ही एडवांस मेथड्स है। एक होता है कि मशीन लर्निंग मॉडल्स हम बनाए। अब उसमें क्या होता है स्टेट ऑफ चार्ज के मशीन लर्निंग मॉडल्स में? कि हमको लेट्स से फॉर एनी गिवन बैटरी, ठीक है, हमको कुछ
डेटा पता है। डेटा क्या है कि भाई उसका टेम्परेचर और वेरी वोल्टेज करंट और बेस्ड ऑन एसओसी, ये हमको पता हुआ है कि इतने पे ये एसओसी ये एसओसी, इस तरीके से हमें एक बहुत बड़ा, वी हैव अ लार्ज डेटा सेट। तो हम क्या करते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाते हैं डिफरेंट बेस्ड, एलएसटीएम बेस्ड, लॉन्ग शॉर्ट टर्म, लॉन्ग एक्चुअली एलएसटीएम को कहते हैं लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो इससे क्या करेंगे हम कि ये जो डेटा दिया हुआ है, लेट्स से दिस इज थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ डेटा, तो इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक को फर्स्ट हिस्सा होगा ट्रेन करेंगे अपना मॉडल उस पे, फिर सेकंड हिस्से पे वैलिडेट करेंगे और फिर हम उस पर टेस्ट। तो हम क्या करते हैं, जनरली 80% पे हम ट्रेन करते हैं, 10% पे वैलिडेट करते हैं और 10% पे टेस्ट करके हम ये बता देते हैं ओके दिस इज ग्रेट। तो जनरली दीज आर वेरियस मेथड्स। ओके, इसमें 80% ट्रेनिंग का डेटा यूज होने के बाद उससे हम, ओके, बिकॉज वाई दिस इज वेरी मच, वेरी मच एग्जॉस्टिव और रोबस्ट, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी अप्रोक्सीमेशन। बाकी इन सब मेथड्स पे बहुत ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन होता है, लाइक कूलम मेथड। कूलम मेथड में क्या करते हैं हम, न हम जो क्या काउंट करते हैं, कूलम्स काउंट करते हैं, एक एमीटर लगा के कितना करंट फ्लो एक्चुअली है क्या कूलम्स, आई इज इक्वल टू क्या है, डी क्यू बाई डी टी तो है। और हम यहाँ से कूलम क्यू कैसे काउंट करें, इंटीग्रेशन ऑफ आई ओवर डी टी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है ना कि स्टेट ऑफ चार्ज जो है डिपेंड करता है रेट, सी रेट पे, कि किस रेट से डिस्चार्ज हो रहा है। अगर वो ज्यादा रेट से डिस्चार्ज होगा तो वो अलग ग्राफ फॉलो करेगा फॉर अ सेम बैटरी फॉर अ सेम टेम्परेचर इफ द सी रेट इज डिफरेंट। तो इस मेथड से, कूलम मेथड इज नॉट अ वेरी ग्रेट मेथड टू कैलकुलेट द स्टेट ऑफ चार्ज। ठीक है, this I have told about, suitable for sodium, sulfur, nickel, cadmium is a costlier types of batteries. Now NiMH, nickel metal hydride, they have low internal resistance and suitable for a high current or devices, or they are generally used in the cameras and high drain devices, also generally in EVs, बट मेजरली लिथियम आइंस को ईवीज में यूज करते हैं, हमारे मोबाइल फोन पे भी रहता है। इसका रीजन मैंने तुम्हें बताया, हाई स्पेसिफिक एनर्जी होती है क्योंकि वाट पर किलोग्राम, कम कम वेट में ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड, पावर प्रोवाइड कर देता है। लिथियम पॉलीमर पॉलीमर भी बेस्ड आ रही हैं कुछ पोर्टेबल डिवाइसेस में। अब क्या होता है, टू क्वांटिफाई द बिहेवियर ऑफ अ बैटरी डिफरेंट पैरामीटर्स आर स्टडी, स्टेट ऑफ चार्ज स्टडी करा जाता है, कैपेसिटी, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, वी डिफाइन द डायनेमिक्स ऑफ द बैटरी कंसेप्ट। और हमें, if we know the amount of energy which is left in a battery compared to the energy it held, it will give an idea how long it will serve our purpose। कि जनरली क्या होता है, ये प्रॉब्लम जो है मोबाइल्स में तो आती है लेकिन ईवी में बहुत ज्यादा सीवियर होती है। क्योंकि क्या होता है कि कोई आदमी जा रहा है, उसे अगर उसका रेंज उसे पता नहीं, अब रेंज वो कैसे निकालते हैं ईवी, वो सबसे पहले एसओसी डिटरमाइन करते हैं, बेस्ड ऑन दैट एसओसी they calculate the range because you know SOC directly proportional to energy available। तो SOC estimate करते हैं, SOC estimate करने के बाद रेंज डिफाइन करते हैं, फिर बताते हैं कि इतनी 20% बची हुई है फुल से, तो इतने किलोमीटर चल जाओगे। तो ईवीज के रिगार्डिंगली दिस इज वेरी मच important। Capacity explains as a percentage of some reference. Sometimes it's a rated capacity, but more likely it's the current capacity at the latest discharge. It's 100% when the fully charged and 0% when the fully discharged. So these are the things. Now, battery capacity is generally measured in ampere hour or milliampere hour. It represents, what does it represent? It represents the amount of energy that can be extracted from the battery. In many types of battery, the full energy stored in the battery cannot be withdrawn because without causing, अब क्या होता है, generally it has been recommended that you never fully discharge your vehicle, fully discharge your battery. Okay, it is not advisable. Less than a 20% and greater than 90%. Okay,
द वर्किंग रेंज बिटवीन 20 to 80% और 90%, इसके बीच में ही आपको अपना जो है बैटरी का वर्किंग रेंज रखनी चाहिए. ओके. व्हाट इज डीओडी? डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज. डेप्थ ऑफ, ये क्या बताता है? इट मेजर्स हाउ डीपली अ बैटरी इज डिस्चार्ज. व्हेन अ बैटरी इज 100% फुल, तो डीओडी ऑब्वियसली 0% होगा. देन इफ द एम्पियर्स आवर रिमूव फ्रॉम अ फ्यूल चार्ज सेल और बैटरी, इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ अ रेटेड कैपेसिटी. फॉर एग्जाम्पल, इफ 25 एम्पियर्स आर रिमूव फ्रॉम 100, तो कितना बचा? 75% स्टेज स्टेज चार्ज हो गई. तो डीओडी क्या है एक्चुअली? इट इज डीओडी इज इक्वल टू 1 माइनस एसओसी. ओके. तो 70% हो जाएगा, तो 1 - 0.75, तो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज कितना हो गया? 0.5, और वी कैन से 25%. इस तरीके से डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज कैलकुलेट होता है. नाउ कम्स टू द बैटरी मॉडल. ठीक है. हाँ. सो नाउ this is a simple equivalent circuit of a battery where RC is the charging resistance है ये. ठीक है. और RD क्या है? डिस्चार्जिंग रेजिस्टेंस. ठीक है. जब बैटरी डिस्चार्ज होगी तो ये वाला सर्किट फॉलो करेगी, और जब चार्ज होगी तो ये वाला सर्किट. ठीक है. अब तो इसमें एसओसी कैसे कैलकुलेट करें? तो एसओसी इज कैलकुलेटेड बाय एसओसी इज इक्वल टू एसओसी जीरो, विच इज द इट इज इनिशियल, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ पहले इनिशियल स्टेट ऑफ चार्ज अवेलेबल होगा. अगर नहीं है तो जीरो है, अगर फुल्ली डिस्चार्ज हो चुकी है. ठीक है. इन 1/c इंटीग्रेशन आई डी टी. अब आई सी क्या है हियर? इट इज द बैटरी कैपेसिटी. इट इज अ बैटरी कैपेसिटी. ओके. नाउ आई इज अ बैटरी डिस्चार्ज करंट. तो इससे क्या पता चल जाएगा हमको? एसओसी निकाल लेंगे एट एनी टाइम ऑफ पीरियड. लेट से टी इज इक्वल टू हमने रखा 5, कि 0 से लेके 5 मिनट में कितनी बैटरी चार्ज हो रही है. ठीक है. या डिस्चार्ज होगी, डिस्चार्ज भी निकल सकता है. तो हम इसको बता लेंगे रिमेनिंग एसओसी कितनी है. और सी क्या है? बैटरी कैपेसिटी कैसे पता चलेगी? जब बैटरी आप लेके आते हो, देयर इज अ करंट मेंशन एंड देयर इज अ टाइम, तो आई इंटू टी करेंगे, उससे हमें बैटरी कैपेसिटी पता चल जाएगी. तो दिस इज अ सिंपल बैटरी इक्विवेलेंस सर्किट. इसका तो ये ध्यान में रखना कि ये जो है, ये कौन सा चार्जिंग रेजिस्टेंस है और डिस्चार्जिंग रेजिस्टेंस है. और जब डिस्चार्ज होगा तो ये सर्किट फॉलो करेगा, और चार्ज होगा तो ये सर्किट, विच इज क्वाइट एविडेंट. ओके. सो लेट मी सी इट once. Just a minute. Now coming to the superconductor magnetic energy, which is, मैंने बताया इसको क्या कहते हैं? SMES. अब इसमें एम्प्लॉय क्या कराया था? स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल करंट कैरिंग करंट डायरेक्ट करंट में. एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कोर मेड अप ऑफ अ सुपर कंडक्टिव मटेरियल का यूज करा जाता है. Why? Because we also already know the superconductive material, when a current this path, there is a lower amount of energy losses. Okay. The basic technical issue here is to manufacture and the cooling. Even a small component in a coil's current can cause losses. Application कहाँ के यूज करता है? AGC, automatic generation control, spinning reserve, power backup like this. Same goes for the super capacitors. ठीक है. This is like that. Now super capacitors की मॉडलिंग कैसे है? सुपर कैपेसिटर मॉडल कराया जाता है. एक कैपेसिटर है ये. ठीक है. देयर इज अ रेजिस्टेंस R1 इन पैरेलल R2, और ये है VUC.
तो इसमें क्या होगा, आई करंट जाएगा विच विल डिवाइड इनटू I1 एंड I2। और अगर हम केवीएल नेटवर्क थ्योरी का यूज करें, यूजिंग नेटवर्क थ्योरी, तो हमको पता है I2 किसके बराबर होगा। I2 इस वोल्टेज, इस दो पॉइंट के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसके बराबर होगा, विच इज वी यू सी डिवाइडेड बाई R2। ठीक, बिल्कुल सही। अगर हम KCL यूज करें इस पॉइंट पे, तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, I1 प्लस I2। इनकमिंग I1 है, I1 और I2 बाहर जा रहे हैं, और I2 भी जस्ट कैलकुलेटेड विच इज दिस। तो I2 किसके बराबर हो जाएगा, I1 प्लस व्हाट इट इज, I2 वी यू सी बाई R2। ओके, तो यहां से I1 क्या निकल के आएगा, यहां से अगर हम I1 निकालें, I1 is equal to I minus I2, which is also equal to, just a second. Okay, I माइनस I2 निकल जाएगा, तो ये वाली इक्वेशन हमारी मॉडलिंग की आ गई। फिर आता है वी यू सी। वी यू सी किसके बराबर हो, ये जो वोल्टेज होगा किसके बराबर होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है प्लस इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है। तो हमको पता है कि R1 के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगा, ऑफ कोर्स I1 R1 प्लस, अब इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है अराउंड द कैपेसिटर, तो वोल्टेज क्या होगा, V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन कैपेसिटर वैल्यू करंट थ्रू इट इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू T2। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया 1 अपॉन C T1 टू T2 I1 dt, बिकॉज I1 करंट इस ब्रांच में है। तो ये हमारा वी यू सी आ गया। तो ये सब जो है क्या है, मॉडलिंग इक्वेशन है। ठीक है, दीज आर बेसिक बताया जा रहा है किस तरीके से मॉडल कराया जाता है। अब फैक्टर्स कंसीडर ड्यूरिंग सेल सिलेक्शन, like dimension and the weight of the cells and containers, planned life of installation and expected service of the life, frequency and the depth of discharge, ये सब जो है फैक्टर्स करे जाते हैं कि डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज ज़्यादा ना हो, और एक एम्बियंट टेम्परेचर होना चाहिए इसमें। फॉर दिस सिलेक्शन देयर आर वेरियस स्टैंडर्ड, IEEE स्टैंडर्ड 484 TM 2002 और 1187 TM 2002। और इसमें एक और है कि चार्जिंग करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कि फास्ट चार्जिंग करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, सेल ओरिएंटेशन का रिक्वायरमेंट है, वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट है, एंड दीज आर वेरियस थिंग्स सेस्मिक करेक्टरिस्टिक्स एंड दिस। नाउ सेल साइजिंग कैसे करते हैं, तो एफ इज इक्वल टू, एफ यहाँ पे क्या है, दिस इज द सेल साइज। सेल साइज क्या होगा, एफ एस इंटीग्रेशन S1 to SN integration, and this is actually integration from AP minus 1 divided by CT। What is AP? AP क्या है, it is ampere, this is okay, just a second, this is ampere hours, ampere, sorry we can say ampere for a P period। ठीक है, और AP-1 पीरियड के लिए जो एम्पियर्स है। अब हम इसको समेट समड अप करें फॉर P नंबर ऑफ पीरियड, फॉर लाइक से P पीरियड इज बीइंग एनालाइज, तो हम इससे निकालेंगे AP माइनस P माइनस डिवाइडेड बाई CT। CT व्हाट इट इज अ कैपेसिटी रेटिंग फैक्टर, इट इज अ कैपेसिटी रेटिंग फैक्टर फॉर अ गिवन सेल टाइम एट T टाइम। ओके, एंड एफ एस इज द कैपेसिटी रिक्वायर्ड बाई ईच सेक्शन। तो इस तरीके से हम अगर हम सम करेंगे, इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द सेल साइज ऑफ एन एनी बैटरी। नाउ कमिंग टू द फैक्टर्स, अब ये क्या होता है कि साइज ऑफ बैटरी किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है।
कि मैक्सिमम वोल्टेज, सिस्टम वोल्टेज हम कितना ले रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। ड्यूटी साइकिल क्या है उस पर डिपेंड करती है। और मिनिमम सिस्टम वोल्टेज पे करेक्शन वोल्टेज। अगर कोई पूछे व्हाट आर द फैक्टर्स which govern the size of a battery, we can say maximum voltage, duty cycle, and correction factor. All these factors are, you know, this. So another thing, now next thing is about the what are the factors which affect the battery performance, like voltage level. When a cell or a battery is discharged, इसके जो वोल्टेज होते हैं वो थ्योरेटिकल वोल्टेज से कम हो जाते हैं। अब एक और चीज है, स्टेट ऑफ चार्ज पे डिपेंड करती है। करंट ड्रेन ऑफ बैटरी इज इंक्रीज, सर्विस लाइफ ऑफ द बैटरी इज डिक्रीज। क्या होता है कि जब ऑपरेशन नहीं हो रहा होता है, जब यूज नहीं हो रही होती बैटरी, उस टाइम भी सम अमाउंट ऑफ करंट ड्रेन इज देयर, वो ज्यादा हो जाएगा, उससे जो है लाइफ ऑफ द बैटरी इज रिड्यूस। मोड ऑफ डिस्चार्ज, like it is in a constant resistance, constant power, and constant current. What are the mode of discharge in this? And temperature of battery, which is also very much important. Like अगर उसका एम्बियंट एक टेम्परेचर, अगर हम उसे हाई टेम्परेचर पे यूज करेंगे तो भी उसकी फैक्टर, उसकी परफॉर्मेंस डिरेट होती है। और इफ वी यूज इट है ना इन अ वेरी लो टेम्परेचर, द परफॉर्मेंस ऑल्सो गेट रिड्यूस। होता क्या है, हायर टेम्परेचर पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से डिस्चार्ज वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, दिस इज लाइक दिस। सर्विस लाइफ, मैंने बताया कि डिस्चार्ज करंट डिक्रीजेस द hours of the service life. Okay, now another thing is voltage regulation. VR of the equipment influences the capacity and the service life of the battery. Charging voltages भी determine करते हैं उसकी the battery performance, and also the battery age and storage conditions. These are also factors which derate the battery performance. और किस टाइप की सेल पैकेजिंग टेक्निक यूज करी गई है, स्पेसिंग बिटवीन द सेल्स क्या है, कंटेनर मटेरियल्स क्या है, इंसुलेशन कंपाउंड्स क्या है, फ्यूजेस, दीज आर ऑल दीज ऑल हैव अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन द बैटरी परफॉर्मेंसेस। अब इसमें क्या होता है, डिपेंड करता है कि किस तरह की बैटरी यूज करी जा रही है। शॉर्ट टर्म में यूज करी जा रही है तो उसकी बैटरी परफॉर्मेंस जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विल डिक्रीज। ठीक है, अब क्या है, IEEE ने कुछ प्रैक्टिसेस रिकमेंड करी है फॉर लेड एसिड बैटरीज के साइजिंग के लिए। नंबर ऑफ सेल्स, करेक्शन फैक्टर्स, यू नो एंड डिजाइन मार्जिन, एजिंग फैक्टर, इनिशियल कैपेसिटी फॉर स्टेशनरी एप्लीकेशंस। ये लिया गया सोर्स फ्रॉम द IEEE स्टैंडर्ड। अब क्या है, नाउ कम टू द वेरियस स्टैंडर्ड। अब क्या है, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो IEEE ने इन प्रैक्टिस लगा दिए गए। उससे क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड जब बन जाते हैं तो उससे यूनिवर्सलिटी आ जाती है, मतलब हर चीज, हर कोई आदमी एक ही चीज फॉलो करने लगता है। ठीक है, IEEE P1600TM-D9 जून 2008 का ये रिकमेंडेड स्टैंडर्ड है। It standard describe about the application and management of stationary battery used in cycling services. Another standard 323. It stands for the qualifying the various equipment used for the nuclear power generations. And another standard is the 535 TM, which is standard for the qualification of lead storage battery for a nuclear power generations. एक है 946 TM 20054, which recommend the practice how to design any auxiliary power system for a DC DC based auxiliary power system for a generating station. So these are the you know standard, you should keep them in mind। मतलब कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड अगर कोई तुमसे पूछे या एग्जाम में पूछे कि क्या किस चीज को सिग्निफाई करता है, वी शुड राइट अ वन लाइन अबाउट दिस ऑन। ओके, now coming to the another topic, which is the DC control, importance of the DC. Okay, so what it is, I will quickly summarize this because I have to do the questions on this also.
ओके। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो भी हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं वो जनरेट पावर किस में करते हैं, डीसी में करते हैं। ठीक है, अगर हमें उन्हें अपने उसको यूसेज में लेना होता है तो देन वी यूज यू नो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किटरी टू कन्वर्ट डीसी टू एसी, देन वी कैन यूज इट। अब now there is DC, we will discuss in a very brief what are the different topologies of DC microgrid, and what are the protection devices and application of the DC and challenges in the DC microgrid. Okay, this is regarding the, I have just told you the photovoltaic, these all produces the DC. अब डीसी की इम्पोर्टेंस ऐसा क्यों है कि वाई डीसी बेस्ड सिस्टम्स आर इंक्रीजिंग, बिकॉज इसमें कोई रिएक्टिव पावर की प्रॉब्लम नहीं होती, हार्मोनिक्स की प्रॉब्लम नहीं होती एंड फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम नहीं होती, जिसकी वजह से कंट्रोलिंग ऑफ अ डीसी बेस्ड माइक्रोग्रिड इज वेरी इजीली। लॉसेस एब्सेंट हो जाते हैं लाइक एडी करंट, हिस्टेरिसिस, स्किन इफेक्ट। और इससे जो है क्या प्रॉब्लम होती है, नो सिंक्रोनाइजेशन इश्यूज भी नहीं होते, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई डीसी माइक्रो ग्रिड है, इसको मेन सिस्टम से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो देयर आर इश्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, वरना देयर विल बी आउटेजेस। अब डीसी का ऑपरेशन डिफाइन करा गया ऑन द बेसिस ऑफ द वोल्टेज लेवल, लाइक लो वोल्टेज डीसी, मीडियम वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज डीसी। हाई वोल्टेज डीसी ऑपरेट अबव 500 और ये इकोनॉमिकल है इन कंपैरिजन टू एसी फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंस ट्रांसमिशन। आई थिंक वी शुड मस्ट हैव नोन दैट। ठीक है, मीडियम वोल्टेज में क्या होता है, 11 केवी टू 33 केवी में यूज होता है। लो वोल्टेज अराउंड this much, 48 volt to 380 volt. It reduces the dependency on the main grid or improves the reliability. अब डीसी माइक्रो ग्रिड की बहुत सारी टोपोलॉजीज होती है, लाइक एक है सिंगल बस। इसमें क्या है, एक सिंगल बस है विच इज सीन हेयर। इस सिंगल बस से जो है ना अलग अलग चीजें कनेक्टेड है, लाइक डेटा सेंटर, कम्युनिकेशन टावर, हीटिंग इक्विपमेंट, लाइटिंग लोड, डीसी बेस्ड, डीसी टू डीसी का सुपर कैपेसिटर्स स्टोरेज, बैटरी बेस्ड स्टोरेज। ओके, these all are connected to the डीसी बस। इसमें क्या होता है, एनर्जी स्टोरेज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द डीसी बस। आसानी हो जाती है हमें, क्योंकि एनर्जी स्टोरेज को पहले हम अगर एसी मेन सिस्टम पे लाते थे तो हमको डीसी टू एसी लगा पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी लगानी पड़ती थी। कनेक्टेड विद अ कन्वर्टर, मोर फ्लेक्सिबल कंट्रोल एंड इम्प्रूव द रिलायबिलिटी। ओके, ऑपरेट्स अराउंड 1 प्लस माइनस 170 वोल्ट एंड रिलायबिलिटी इज इम्प्रूव। अब एक आता है मल्टी बस टोपोलॉजी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डीसी, टू डीसी बसेस आर देयर, और डुअल सेपरेटली फेड डीसी माइक्रोग्रिड होता है। साइमल्टेनियस सप्लाई फ्रॉम मल्टीपल बसेज इज पॉसिबल। इसकी वजह से क्या होता है, इफिशिएंसी जो है इंक्रीज कर जाती है। एवरी माइक्रोग्रिड इज एबल टू एब्जॉर्ब इंजेक्ट पावर फ्रॉम इट नेबर इन केस ऑफ शॉर्टेज। अब क्या होता है, इस माइक्रोग्रिड में शॉर्टेज ऑफ पावर होगी तो इधर से भी ले लेगा वो पावर। ठीक है, एनर्जी मैनेजमेंट इन लोअर लेवल विल बी इन सॉलिड स्टेट ट्रांसफॉर्मर। Okay, now comes to another topology, which is a reconfigurable topology. It is a highly reliable and redundant operations. और इसमें क्या होता है, इसमें क्या है actually, it has a it is highly redundant and fault can be isolated within each unit without disturbing the other zone. अब किसी भी जोन में कोई फॉल्ट होता है तो उस फॉल्ट को वहीं क्लियर कर सकते हैं बाय नॉट डिस्टर्बिंग अदर जोन्स ऑल्सो। तो ये है एक तरीके का system where there is a utility PV array, battery is there, and also fuel cell PV array. These are all connected. Of key sources, energy sources in microgrid, we know photovoltaic, wind energy, and fuel cells. Now coming to the modeling of the fuel cell. कि fuel cell की modeling कैसी है? So, अब क्या होता है, आइडियली एक फ्यूल सेल इस तरीके से डिपिक्ट करा जाता है। एक कांस्टेंट करंट सोर्स होता है और एक वोल्टेज, एक डायोड लगा होगा।
ठीक है, पर आइडियली ऐसा नहीं होता, बिकॉज वी नो इन एवरीथिंग देयर इज सम टाइप ऑफ रेजिस्टेंस इज देयर. सो टू मेक इट अ मोर प्रैक्टिकल, we add a parallel a shunt resistance, or this is okay, this is known as RP. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अब क्या होगा, जो आउटपुट होगा ये करंट आई है. ठीक है, अब यहां से लेट से देयर इज अनोदर करंट आई वन. एक्चुअली अगर ये आइडियल होता तो ये वाला आई सी एच जीरो होता है. तो क्या होता है एक्चुअली, आई वन इज इक्वल टू आई एस एच माइनस आई, ये होना चाहिए था, सॉरी, प्लस आई. ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि प्रैक्टिकल हमें सिस्टम बनाना होता है, तो इसकी वजह से जो आई होगा वो आइडियल से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. दिस इज अगर यहाँ पे आई है. ठीक है, तो इस तरीके से हम, और हम ये भी कह सकते हैं, लेट्स नॉट टेक आई, इस आईडी के टर्म्स में हम अगर हम लिखना चाहें तो मान लीजिए एक करंट आईडी इधर चला गया, आई एस एच इधर चला गया, तो आई किसके बराबर होगा, आई पी वी माइनस आई डी. सॉरी, एक जस्ट, हाँ, आईडी इधर की तरफ है, आई एस एच इधर है, और आई पी वी यहाँ से आ रहा है. तो क्या होगा, आई किसके बराबर होगा इन टर्म्स ऑफ आईडी एंड आई पी वी, विच विल बी आई पी वी. इसमें से आईडी चला गया इधर, आईडी इज हियर, माइनस आई एस एच, which is due to the practicality of the, you should mute your mic, Gopal. Okay, yes. ठीक है, Yes, sir. this Yes, is, sir. oh, yes. Okay, this is like this. अब अगर प्रैक्टिकल सिस्टम नहीं होता तो हमारा ये वाला टर्म विल नॉट बी हेयर. तो हमारा जो करंट आउटपुट करंट वुड हैव इंक्रीज, बट क्योंकि मैंने बताया कि आइडियली इट इज नॉट पॉसिबल, so that's why this is ISH will go माइनस ISH. ठीक है, अब इसमें क्या है, व्हाट इज IPV एंड ID. अब नाउ लेट्स, व्हाट इज ID. डायोड करंट का फॉर्मूला तो हमको पता ही, आई नॉट एक्सपोनेंशियल V प्लस IRS डिवाइडेड बाई ईटा VT. ओके, here actually it is alpha, so I will using it A. Okay, A यूज कर ले. ठीक है, ये हमारा क्या है, दिस इज द आईडी माइनस, ओ, माइनस वन. ओके, ये हो गया. अब आई एस एच क्या होगा यहाँ पे, आई एस एच हम निकालते हैं. व्हाट इज आई एस एच, आई एस एच होगा V प्लस आई आर एस डिवाइडेड बाई आर. अगर हम इस ब्लॉक में एक KVL लगा दो तो ऐसे आ जाएगा. क्योंकि देखो क्या है, लेट्स से दिस इज प्लस दिस इज माइनस, तो माइनस V. Okay, if we move on from here, if we moving from low to high, it is minus, so minus I RS then plus ISH R. ठीक है, इज इक्वल टू जीरो. तो V किसके बराबर हो जाएगा, if we, I think, okay, V is equal to IRS plus, sorry, just let me, so V plus IRS will be equal to ISH RP. तो माइनस साइड विल कैंसिल आउट, फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट ISH. तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, ये आ गया हमारा ISH प्रैक्टिकल के लिए. ओके, और IPV तो अलग रहेगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आई विल ड्रॉ इट इन द नेक्स्ट स्लाइड. तो इस तरीके से हम जो है आउटपुट जो करंट है आई, उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. अब व्हाट इज वोल्ट VI कैरेक्टरिस्टिक, विच इज अ PV करंट, IPV से हमने. अब VI कैरेक्टरिस्टिक हर किसी सोलर पैनल का दिया होता है.
तो इसमें this is the VI characteristic of this. Okay, here on the y-axis, what here is here the current. In the x-axis, there is voltage, and IPV is the photon current, and ID is the what is ISC? ID. Yeah, okay. So this is the PV curve of any VI characteristics of any PV. और मैंने ये बताया था यहाँ पे क्या है VT. What is it? What it is? It is a thermal voltage. इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? Which is we can calculate KT by Q. ओके, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. So this is how a PV cell is modeled. और जब हम पीवी सेल मॉडलिंग करेंगे तो आईपीवी जो है हमें मैन्युफैक्चरर्स उसकी कैरेक्टरिस्टिक जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताई है, ये सब जो है कैरेक्टरिस्टिक मैन्युफैक्चर प्रोवाइड करते हैं. तो उसके बेस पे हम ये पीवी सेल की मॉडलिंग कर लेते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द विंड सिस्टम. देयर आर टू टाइप्स ऑफ द विंड सिस्टम. First one is with the squirrel cage, we have fixed speed and a multiple variable speed. Synchronous machine type, fixed and variable speed, and a wound rotor induction, fixed and a variable speed. ठीक है, तो these are all you know the types of wind system we use. और इसकी मॉडलिंग आई हैव मैंने इसकी मॉडलिंग अराउंड मुझे लगता है सेकंड लेक्चर में मैंने उसका पूरा फॉर्मूला ड्राइव कराया था. हाउ पीएम इज कैलकुलेटेड आउटपुट ऑफ अ wind turbine, which is equal to Cp, which is a function of lambda and a beta, is multiplied by rho. What is rho here? Air density. And A is the swept area. Swept area of which turbine? Turbine कितने कितने एरिया में स्वेप्ट करती है. ठीक है, और अगर मैं ये पूछूं काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1/2 रो ए वी विंड. इस तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं. ठीक है, अब हमको पावर पता है पी ए. व्हाट इज पी? पी इज द मैकेनिकल पावर आउटपुट. इसका मैंने डेरिवेशन इन द सेकंड लेक्चर आई हैव ड्राइव्ड ऑल दिस. और सीपी का भी बारे में बताया था, विच इज अ कांस्टेंट. व्हाट इज इट? इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कांस्टेंट. इट हैज बीन डेवलप्ड बाय अ फ्रेंच साइंटिस्ट. ओके, और ये वेरी कैसे करता है? C1 C2 by lambda I, C3 C4, these are all constant. Okay, what is lambda I? It is the tip speed ratio. Tip speed ratio. ठीक है, and this is all. For any wind turbine you can calculate this. फिर इसके बाद क्या करोगे? फिर इसके बाद हमारा जो लैम्डा कैलकुलेशन, फिर हम टॉर्क निकाल सकते हैं. टॉर्क कैसे निकाल सकते हैं? पीएम हम जो है पी क्या होता है? पी इज टी डॉट ओमेगा. तो यहाँ से हम टी निकाल लें तो पी बाई ओमेगा. इस तरीके से पी निकाल सकते हैं. जो भी पी का फॉर्मूला है कैलकुलेट डिवाइडेड बाई ओमेगा. व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा क्या है? ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ विंड टर्बाइन. दिस इज हाउ यू मॉडल द विंड टर्बाइन एंड यू कैन कैलकुलेट द आउटपुट. नाउ नेक्स्ट थिंग हियर इज द फ्यूल सेल. मैंने क्या बताया था? माइक्रो ग्रिड में क्या हो सकते हैं? पीवी हो सकता है, विंड हो सकता है, हो तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन हियर इन दिस लेक्चर वी आर मोर कंसर्न अबाउट द फ्यूल दिस टाइप. अब इसमें डिजाइन फीचर्स क्या होने चाहिए कि किस टाइप का फ्यूल इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस वी यूज. इट ऑलवेज डिफाइन द टाइप ऑफ द फ्यूल. जनरली हाइड्रोजन यूज करा जाता है. एनोड कैटलिस्ट also important design feature which break down fuel into ions, usually made up of a platinum powders or like this. Cathode catalyst क्या करता है? Turns water into into water और platinum oxide. ये एक तरीके का equivalent electrical model है which comprises of a number of elements which represent the thermodynamic and electrochemical phenomena which is occurring in any fuel cell as well as the consumption paraphernalia. अब इस this model reproduces the fuel cell electrical performance based on the current demanded and the operating temperature. तो ये क्या है? ये एक वोल्टेज है इसका. ओके, दिस इज voltage of the concentration. This is voltage. This is the resistance of the fuel cell.
Okay, this is, and here it is the output VSC, output of the, or इस equivalent model को you should keep it in the mind. Okay, अब इसमें आता है कि what are the different types of loads. There are various, a constant current loads होते हैं जिसमें करंट कांस्टेंट रहती है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर वेरीड। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर करेंगे, और अगर हमें कांस्टेंट करंट रखना है तो V बाई आर के रेशियो को क्या रखना है, कांस्टेंट। तो V बढ़ाएंगे आर, इस तरीके से हम कर सकते हैं। कांस्टेंट पावर, जिसकी पावर कांस्टेंट रहेगी, एंड इम्पीडेंस इसमें बढ़ाते हैं इनपुट वोल्टेज को चेंज करके, सो दैट द पावर रिमेन कांस्टेंट। अब आता है स्विच मोड कन्वर्टर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू द, अब क्या होता है पहले जो है लीनियर मोड ऑफ कन्वर्जेंस, मोड ऑफ कन्वर्टर्स रहते थे, सीरीज और शंट बेस्ड। स्विच मोड ऑफ कन्वर्टर्स आए क्योंकि उसमें लॉसेस ज्यादा होते थे, दैट्स व्हाई दे कम इनटू द एग्जिस्टेंस, और दे आर जनरली नोन एज डीसी डीसी, और बेस्ड ऑन देयर टोपोलॉजी दे आर नोन एज आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड। ठीक है, this is the classic, there are various topologies like buck boost, cook converters, and these topologies are used when there is a need for unidirectional power flow. This is a buck converter, VO is equal to D times VN. इसमें क्या होगा, बक कन्वर्टर में द वोल्टेज विल बी स्टेप डाउन, और D क्या है, इट इज द ड्यूटी रेशियो विच इज डिपेंड ऑन टी ऑन बाई टी एस। बूस्ट में क्या करेगा, इट विल बूस्ट द वोल्टेज। तो बूस्ट में इसमें एक और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है, हाउ डू यू यू नो आपको कैसे पता चलेगा, हाउ डू यू सी दिस इज द बक और दिस इज द बूस्ट। इफ इन देयर इज द स्विच इज after the voltage, so there is a switch which is connected instead of an inductance. So we can clearly say this is a buck. If the inductance is connected, then it is a boost. This is a different type buck boost converter. Depending upon the duty ratio, we can calculate these. Now coming to the, because we have to solve the numericals. So what are the challenges? Generally क्या है, DC microgrid is an early stage of development. Standards are lacking here. Protection issues हैं. DC circuit breakers is not so much. Lack of DC infrastructure. You can see कि AC infrastructure तो है हम तरफ, but DC infrastructure is very lacking here. इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, सर्कुलेटिंग करंट्स होने लगता है। तुमने सुना होगा कि बक बूस्ट में सर्कुलेटिंग करंट मूव होने लगता है, ग्राउंडिंग इश्यूज आने लगती हैं इफ देयर इज एनीथिंग लाइक दैट। तो सर्कुलेटिंग करंट से क्या होता है कि उसकी परफॉर्मेंस जो है, एफिशिएंसी कम डिक्रीज हो जाती है। और इसमें एक और प्रॉब्लम रहती है डीसी माइक्रोग्रिड की, इट इज अनेबल टू फीड एसी लोड। एसी लोड तो फीड ही नहीं कर पाएगा, फिर वही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किटरी आ जाएगी। Now coming to the microgrid, which I already told you about. In an AC microgrid, क्या होता है? It is connected to a main utility. There are, micro turbine, battery is there, PCC, which is point of common coupling. This is a, इसके दो operations हैं, isolated mode, grid connected, और islanding mode, which I have, talked it about. Grid connected mode में क्या होता है, the microgrid is directly connected to the main distribution system, either partially or injecting some amount of power. ठीक है, और the local controller is known as PQ controller and DG. Islanded mode में क्या होता है, it is disconnected from the NV grid, main grid, for or sometime it is intentional and sometime it is unintentional. What is islanding? मैंने ये बता चुका हूँ last lecture में. What is islanding? It is a situation of a microgrid which is when it is disconnected. Islanding के issues क्या होते हैं? They are generally they get safety concerns होते हैं। इनके डिटेक्शन की टेक्निक मैंने बता दी है, एक्टिव बेस्ड है, पैसिव बेस्ड है, हाइब्रिड है, एंड कम्युनिकेशन बेस्ड। नाउ दिस इज द कंट्रोल ऑफ अ सिंक्रोनस जनरेटर बेस्ड डीजीज। माइक्रोग्रिड क्या होता है, जनरली इट इज कंट्रोल करा जाता है from the speed regulators by energy admitted in the prime motor is regulated in response to the load changes,
which would tend to cause the changes in the speed. You can go towards this book, which is a very good book if you want to. अब इसमें होता है control of inverter based DGs. Due to internal characteristic, more DGs are generally not suitable for the direct connection. Therefore, a power electronic devices interface is required, as I have said. And generally, most conventional power is a back-to-back structure with the two voltage source, one from generator side, other for the uh, converter grid side. इसमें जो होते हैं there are various converters in the AC grid. Someone is grid following. They are mainly क्या होता है इसमें? They are designed to deliver power to an energized grid, and they can be represented as an ideal current source connected to the grid in a parallel with a high impedance. Actually, high impedance होता है और they are connected in parallel. Okay, they generally operate in parallel with the other grid feeding power converters, and they convert participate क्या करते हैं ये? They control of the micro AC microgrid voltage amplitude को convert करते हैं कंट्रोल करते हैं और frequency को. And these or ये power converters cannot operate in islanded mode if there is no grid forming or grid supporting converters available. ठीक है? Another thing is this, the grid forming converter can be represented as ideal ideal voltage source होता है उसको अगर हम फिलहाल एक लो आउटपुट इम्पीडेंस से लो आउटपुट इम्पीडेंस से हम रिप्रेजेंट करा जा सकता है ठीक है नाउ कमिंग टुवर्ड द अदर थिंग्स ओके नाउ वन ऑफ द बिकॉज टाइम इज लेस दिस इज द ट्यूटोरियल सेशन तो मैं क्या करूँगा थोड़ा थोड़ा वो बता दूंगा उसके बाद क्वेश्चंस कराएंगे आई विल सॉल्व द क्वेश्चन अब इसमें एंसिलरी सर्विसेज ग्रिड कनेक्टेड मोड आइलैंडेड मोड बिकॉज मैं इसलिए ब्रीफ में बता रहा हूँ बिकॉज आई हैव covered these in previous lecture, the islanding mode in a very detailed way. अब एंसिलरी सर्विसेज मैंने क्या बताई थी शुरुआत में कि फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करता है इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ एन माइक्रोग्रिड टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोविजन ऑफ एंसिलरी सर्विस ये एक तरीके का जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ है ये एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है हाई वोल्टेज लाइन पे कनेक्टेड एट 20 वोल्ट 20 किलो वोल्ट देन ट्रांसफार्मर इज देयर विच इज स्टेप डाउनिंग इट एंड देयर इज अ माइक्रोग्रिड और हेयर यू नो पावर रेफरेंस पावर डिस्पैच हो रही है कितनी पावर डिस्पैच नहीं हो रही है ये इसके अब क्या होता है फॉर एनी फॉर अ distribution network what happen here is this कि mg an advanced interface control system inside the microgrid is developed in order to provide the available regulation in power with the distribution network requirement ठीक है रेफरेंसिंग से पावर रेफरेंसिंग से ये फ्रीक्वेंसी सपोर्ट दे देता है ठीक है okay now I think I would go on toward the questions because only half an hour is left it will be better and questions क्या है जो भी questions होंगे उसका it is a MCQ based तो आप लोग चैट में उसके आंसर्स मुझे टाइप करके बताएंगे those who are just a second so first question is I think someone should mute themselves okay so the first question is the capacity of a battery is measured in पहले हम स्मॉल से स्टार्ट करेंगे सिंपल क्वेश्चन ऑप्शंस चैट में लिख आई विल सी
Okay. What is this? Ampere hour. Yes, 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 yes. Ampere hour is the correct. Okay. Another question here is IEEE. Okay, this answer is Ampere. Uh, IEEE recommends practice for the design of DC auxiliary power system for generating stations under IEEE standard. पहला है 535 TM 2006. B here 323 TM 2003. C 627 TM 1980 and D 946 TM 2004. So write the correct answer in the chat box. Okay, what are the answers? D. D. Yes, D is the correct one. मैंने अभी बताया था कि 946 डील विद द डिजाइन ऑफ ऑक्सिलरी पावर सिस्टम्स जो जनरेटिंग स्टेशंस में जो ऑक्सिलरी पावर सिस्टम्स होते हैं उसके डिजाइन के लिए दे आर दैट ओके ओके अनदर थिंग आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 वेरिएबल स्पीड ड्राइव लोड्स आर fill in the blanks types of load. वेरिएबल स्पीड ड्राइव लोड किस टाइप के होते हैं? कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट and zip load. Write in the chat box. Okay. What are these types? Anyone else? Okay. Okay. तो क्या है कि जो वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स होते हैं दे आर जनरली अ कांस्टेंट पावर
ठीक है. So these are constant power. ठीक है. Now the next question here is question number 4, which of the following states the DC grid's importance over AC grid? पहला, relatively easier frequency and var control. Second, absence of reactive power control. Third is reduced power congestion. Fourth is reduced system losses. So A option is first and second. B option is first and third. C option is third and fourth. And D option is second, third, fourth. Write in the chat box which is the correct answer. Yes, Janki. Yes. How to allow. Hmm, there is the hand option here available. Okay. हाँ, हेलो. हाँ, बोलो क्या हुआ? Not able to see him. Hmm. So the correct option here is D. Yes, it is correct. क्योंकि डीसी का माइक्रो ग्रिड का इम्पोर्टेंस ही यही है. रिएक्टिव पावर होती नहीं, कंट्रोल नहीं होगा, कंजेशन रिमूव कर सकते हैं, सिस्टम लॉसेस. दिस इज द करेक्ट.
Okay, IDMT characteristics are: first, T is equal to 0.14 divided by m raised to the power 0.01. Yes. T is equal to 0.14 divided by m raised to the power 0.01 minus 1 and multiplied by TDS, time division. Second, T is equal to 0.14, this is 0.14 divided by m raised to the power 0.01 plus 1 and then multiplied by TDS. Same, T is equal to 0.14 divided by m raised to the power 0.01 plus 1 multiplied by TDS. Okay. Oh, just a second. 0.02 and this is minus 1 into TDS. तो इसमें से IDMT की कैरेक्टरिस्टिक्स का ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? दिस यू शुड राइट इन द चैट बॉक्स. ओके. Yes, this expression correctly signifies the IDMT characteristics. Now, the lower and upper limits of TDS are set to this respectively. इसकी लिमिट्स क्या होती हैं? अपर एंड लोअर. पहले लोअर बतानी है फिर अपर. तो पहला है ऑप्शन 0.05 एंड 1.05. बी है ऑप्शन 0.5 एंड 0.5. सी है ऑप्शन 0.05 एंड 1 एंड डी है ऑप्शन 0.05 एंड 0.03. बताओ उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? लोअर एंड अपर लिमिट. यस. तो हाँ, लोअर लिमिट क्या है इसकी टीडीएस की? 0.05 और अपर लिमिट है 1. तो कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट. नाउ, what is the main advantage of using adaptive
protection schemes in the context of स्मार्ट ग्रिड। तो इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। पहला है मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन कन्वेंशनल स्कीम्स। बी है नॉट डिपेंडेंट ऑन करंट इंफॉर्मेशन। सी है वर्क वेल विद फिक्स्ड मोड ऑफ ऑपरेशन। एंड डी कैन हैंडल the fluctuating nature of renewable energy sources and changing fault condition. So write down the correct answer. Yes. तो करेक्ट, क्योंकि जो स्मार्ट ग्रिड में जो अडेप्टिव प्रोटेक्शन स्कीम होती है उसका मेन एडवांटेज ये होता है कि जो फ्लक्चुएटिंग नेचर है ना रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का और जो फॉल्ट की कंडीशंस इट चेंजेस उसको इट कैन इजीली हैंडल, इफेक्टिवली हैंडल कर सकता है। तो द डी आंसर इज द करेक्ट। नाउ अब एक है एक बहुत ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर which of the following condition the decision will not be +1। क्या कंडीशंस है? एक है पावर फ्लो डायरेक्शन है, ये कैसी है? इट इज अपस्ट्रीम, ओके। और फॉल्ट पॉइंट इज रिवर्स। एंड डेल फाई 2 और डेल फाई 1 क्या है? पॉजिटिव। बी में क्या है? पावर फ्लो डायरेक्शन इज अपस्ट्रीम, फॉल्ट पॉइंट इज फॉरवर्ड, डेल फाई और डेल फाई 1 इज व्हाट इट इज? नेगेटिव। ठीक है। सी है पावर फ्लो डायरेक्शन इज डाउनस्ट्रीम, फॉल्ट पॉइंट इज फॉरवर्ड एंड डेल फाई 2 और डेल फाई 1 इज पॉजिटिव।
Another here is this last option. Power flow is downstream, fault point is reverse, and del phi 2 and del phi 1 is negative. I will give you a minute to write the correct answer in a chat box. इसमें क्या होता है, ये हमें बताना है कि डायरेक्शनल एलिमेंट का रूल बेस्ड होता है ना ये, कि ये डिसीजन क्या होगा डायरेक्शनल एलिमेंट का, दैट वी हैव टू either it is +1 -1 what it will be. So write down in the chat box. What is the answer? Hmm. B and D. Okay. देखो क्या है, रूल बेस फॉर डायरेक्शनल एलिमेंट, इसको देख लेना, लिख लेना अपनी कॉपी पे, मैं एक टेबल प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 4-5 क्वेश्चंस आराम से हो जाए। पहला है कॉलम पावर फ्लो डायरेक्शन, ठीक है, फिर है फॉल्ट पॉइंट, ओके, del phi 1, then the decision. Let's say power flow is upstream, fault point is forward, और del phi is negative. तो डिसीजन क्या होगा डायरेक्शनल एलिमेंट के लिए, माइनस। अब फिर से पावर फ्लो लेट्स से अप स्ट्रीम है, एंड फॉल्ट पॉइंट जो है क्या है, रिवर्स, एंड डेल फाई इज पॉजिटिव, then it will be plus. Now if it is downstream and fault point is forward, and this is of course positive, then it is +1. If it is reverse, it is negative minus. इसके अकॉर्डिंगली अगर सारे ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन में कह रहा है कि अप स्ट्रीम में है, फॉल्ट पॉइंट रिवर्स में है, डेल फाई पॉजिटिव होगा, तो ये तो नेगेटिव होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन नॉट देयर। सेकेंडली आप स्ट्रीम में है, फॉल्ट पॉइंट फॉरवर्ड है, डेल फाई नेगेटिव है, तो इट विल बी -1। तो एक्चुअली जस्ट अ सेकेंड, ओके ओके, जस्ट सॉरी फॉर इट, वी हैव टू चेक, मतलब +1 देखना है ना मैं, ओके ठीक है सही है। तो यहाँ पे हाँ आप स्ट्रीम में है और रिवर्स में है, एंड द डेल फाई इज पॉजिटिव, तो क्या डायरेक्शन होगा, +1, +1 होगा, so this is the correct option. Which of the following the decision will not be a +1? Oh sorry, I am confused. +1 नहीं होगा, हाँ, as per the question it is wrong, will not be 1, ठीक है। आप स्ट्रीम में
and it is forward. Del phi is positive, it is negative. So, as per the question, it is correct. So, option B will be the correct answer. Hope. And another here is this B and D. What is it? Then downstream and reverse. Yes, D also there. Saroj has given the correct. Downstream reverse and the phi is negative, it will be minus 1. So B and D is the correct as per this rule base for the directional element. Now the next question is question 9. Okay, what are the key deciding features of a BSS, battery energy storage system? पहला charging and discharging time. B, minimum number of storage cycles. C, minimum storage period. D, all of these. मतलब what it will be. Yes, it's very easy. All these factors are deciding features of any BSS. The energy storage level of a supercapacitor is represented by charging current, volt ampere, redox flow, and D, terminal voltage. So write in the chat box the correct answer. Okay, the answer is terminal voltage. Terminal voltage ही define करते हैं सुपर कैपेसिटर के स्टोरेज लेवल. ठीक है. So I will give you other questions also if it's possible. Okay. क्योंकि इसमें जो है एक्चुअली जो स्टोरेज लेवल है कैपेसिटर का इट इज डिसाइडेड बाय द एनर्जी स्टोरेज of a by terminal voltage actually by the terminal voltage. Okay, just a minute. And I think अच्छा इसमें एक चीज और है which I would like. Okay,
Question number 11. Which of these have high specific energy? WH what per? So first है lithium ion, B NaSC, lead acid, and then D is pumped hydro energy system. So write this, which has the high specific energy. D. Okay, nice. D sodium, high specific energy. देखो ये तो बहुत आसान सवाल है. आई डोंट नो व्हाई आर यू सेइंग डिफरेंट थिंग्स. लिथियम आयन की सबसे ज्यादा स्पेसिफिक एनर्जी होती है विच इज अराउंड 200. ओके. सोडियम NaCS की अराउंड 150 टू 200 के बीच में होती है. लेड एसिड की 30 टू 50 होती है एंड पम्प्ड की अराउंड 5 टू 10. तो बेसिकली लिथियम आयन हैज अ हाई स्पेसिफिक एनर्जी. ठीक है. इसकी वजह से स्पेसिफिक पावर भी ज्यादा आती है. So if I frame a question like this, another question, which of these of the above battery energy storage system has high capital cost of energy in US dollar per kilowatt. ठीक है. तो ऑप्शन सेम है. लिथियम आयन, NaS, लेड एसिड एंड पम्प्ड स्टोरेज. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट इन द चैट बॉक्स. ओके. नहीं देखो, सबसे महंगी जो है, जो बैटरी की कहेंगे, यू ऑलरेडी नो, लिथियम ही होती है ना. लिथियम आयन. इसके अराउंड 840 US डॉलर पर किलोवाट आवर पड़ता है. तभी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर वेरी कॉस्टली. ठीक है. तो करेक्ट आंसर इज ए. सो विद दिस आई close this today's tutorial session. I hope you have learned something from this. Okay. Thank you for coming. मैं ये नोट्स और ये, हाँ, ये जो है पूरा वीडियो लेक्चर्स, आई विल शेयर इट. थैंक यू. थैंक यू.